جب آپ کو کے تھرو آئیں جس طرح ایوب خان صاحب بھی آئے تھے تو اٹ از ناٹ اباؤٹ دیئر پرسنالٹی, اٹ از اباؤٹ واٹ دے آر ریپرزینٹنگ. ایوب خان نے بھی کیا, ضیاء الحق نے بھی کیا, مشرف صاحب نے بھی جی سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ لے کے آئے. اس لیے ان کے پولیس ریفارم یا لوکل گورنمنٹ ریفارم آج تک کسی چیز نے سروائیو نہیں کیا, بیکاز کریٹ اے کلاس دیٹ از لویل ٹو مشرف. ڈیولپمنٹ فنڈز ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر ہمیں سیاست کرنے کا کیا فائدہ؟ سیاست صرف ایک بزنس کا طریقہ بن گیا ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ لوکل باڈیز کو چلی جائیں گے تو ایم این ایز اور ایم پی ایز کیا کریں گے؟ جب ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تب کوئی نہ کوئی انٹرنیشنلی اس طرح کے حالات بنے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ وہاں سے فنڈنگ آئی ہے. تو اب ہمارا یوکرینین وار ایفرٹ کے اندر جو ہم لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے اسی کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کا ٹرانچ بھی ملا. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, اگر پاکستان میں پراسپیرٹی آنی ہے تو peace with India is essential at any cost for the good of its own people. Bibi also realized the mistakes that her father had made in nationalization. جی ناظرین, پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے 1990 کی دہائی کو ایک مختصر طریقے سے بیان کیا جو مختلف ادوار رہے سیاسی, اور آج ہم بات کریں گے اسی سلسلے کی کڑی ہے 1990s کے بعد جو جنرل مشرف کا دور تھا, جب وہ 1999 میں اقتدار میں آئے اور 2008 تک وہ رہے پاکستان میں, اور وہ بھی ایک بہت ہی تلاطم امیز قسم کا دور تھا. تو میرے ساتھ دوبارہ سے جگنو محسن اور یعقوب بنگش موجود ہیں, اور آگے بڑھتے ہیں. اور جنرل مشرف جو کہ نواز شریف نے خود اپوائنٹ کیے تھے, بالکل تاریخ نے دہرایا جیسے ضیاء الحق نے, ناظرین ہم نے ذکر کیا تھا بھٹو کو اپوائنٹ کیا اسی خیال میں کہ بھٹو صاحب جو کہ جنرل ضیاء جو ہیں وہ بڑے تابعدار قسم کے چیف آف دی آرمی اسٹاف بن کے رہیں گے. تو نواز شریف کا بھی شاید یہی خیال تھا کہ جب انہوں نے جنرل مشرف کو اپوائنٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح رہے گا کیونکہ جنرل مشرف پنجابی جنرل نہیں تھے, اور یہ بھی ایک کیلکولیشن جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی ان کی اپوائنٹمنٹ میں. بہرحال یعقوب تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ وہ جو کو ہو گیا 99 کے, اور پہلے 3 سال جنرل مشرف ایک اتا ترک بن کر آئے, 2 کتوں کی تصویر اور انلائٹنڈ ماڈریشن, اور کہ پاکستان کو جو ہے لبرل اسٹیٹ بنائیں گے, اور کچھ چیزیں بھی ویسے سٹارٹ کی ٹو بی فیئر, لوکل گورنمنٹ کا نظام, پولیس کے ریفارمز, کچھ سول سروس کے ریفارمز اور یہ وہ, اور پھر 9/11 ہو جاتا ہے تو پھر ویسٹ کی ایڈ بھی آنا شروع ہو گئی ایز یو سو. تو تھوڑا سا اس پیریڈ کے بارے میں بھی آپ بتائیں جو ارلی مشرف ایئرز 99 to 2002 before he also became a typical politician to retain power. جی بالکل رضا, جس طرح سے آپ لوگ پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو 1999 کا جو کو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے with the background of Kargil, with the background of the military actually losing power eventually after the amendment to remove the presidential powers. تو اس سلسلے کے اندر ایک یہ بس ٹائمنگ تھا کہ یہ کب اس طرح کا کو ہونا ہے, بیکاز آرمی تب تک جو مل بس جو بن چکا تھا ایز آر فرینڈ عائشہ صدیقہ سیز, وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی پولیٹیکل پاور کو اپنے اوپر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی. تو وہ جو سری لنکا والا جو انسیڈنٹ وغیرہ وغیرہ, دوز آر سائڈ شوز. دی ریئل تھنگ از کہ ڈیموکریسی ہیڈ ٹو بی ڈیریلڈ ایٹ دیٹ ٹائم فار another side to come up. Now مشرف صاحب کی بات دیکھیں, پرسنلی مشرف was not a bad guy, مطلب all of us had met him and he was quite charming, quite nice. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ماڈرن اتاترک, ماڈرن جناح والا کنسیپشن. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کے تھرو آئیں جس طرح ایوب خان صاحب بھی آئے تھے تو اٹ از ناٹ اباؤٹ دیئر پرسنالٹی, اٹ از اباؤٹ واٹ دے آر ریپرزینٹنگ, it is about how they have come in and what kind of things they are representing. They might have done good things also. No one does completely 100%. وہ یہ pendulum تو نہیں ہے کہ یہاں 100% ہے تو یہاں 0 ہے. تو یہ نہیں کہ مشرف صاحب نے ہر چیز بڑی اچھی کی یا ہر چیز بڑی بری کی. Of course he also did some good things جس کا آج تک ہم benefit reap کر رہے ہیں. For example liberalization of media ان کے زمانے میں شروع ہوا, مگر جس طریقے سے وہ آئے اس نے جو تھوڑی بہت ڈیموکریٹک بیس جو ہماری بننی شروع ہوئی تھی اس کو تباہ کر دیا. اور جس طرح ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے, ایوب خان نے بھی کیا, ضیاء الحق نے بھی کیا, مشرف صاحب نے بھی جی سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ لے کے آئے. اگین پوری دنیا میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, مگر ہمارے جو 3 ڈکٹیٹرشپس کے میجر جو فیزز ہیں اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کس نیت سے آئی؟ وہ اس نیت سے آئی کہ پروونشل اور نیشنل
डेमोक्रेसी को खराब करना है, उसको अंडरमाइन करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को अंडरमाइन करना है, इसलिए ये भी शुरू में नॉन पार्टी बेसिस पे थी। तो अगर आपकी नीयत खराब हो ना, तो फिर आगे कोई चीज ठीक चल नहीं सकती। उन्होंने सिस्टम भी ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि मेयर की जगह नाजिम ले आए, डिप्टी कमिश्नर को डीसीओ बना दिया, किसी को पता नहीं था कि रोल क्या है वगैरह। सो रिफॉर्म्स की तो ऑफ कोर्स जरूरत थी, मगर हैपहैज़र्ड रिफॉर्म्स का जो नतीजा है ना, वो बड़ा अजीब किस्म का निकलता है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दूं। मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था, तो ये मुशर्रफ साहब के जमाने में थी, तो बड़े मजे की बात आई कि एक दफा मैंने खैरपुर में जाके पूछा, मैंने कहा जी खैरपुर जब रियासत थी तो उसका रिकॉर्ड कहाँ होगा? किसी ने कहा जी कमिश्नर हाउस में, किसी ने कहा जी वो डीसी हाउस में, किसी ने कहा जी नाजिम के, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि कौन हु इज द रिपोजिटरी ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड इन 3-4 ऑफिस में घूमता घुमाता आधे से ज्यादा जाया भी हो गया। सो हैपहैज़र्ड वे से काफी ज्यादा मुशर्रफ साहब ने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। पुलिस ऑर्डर आपको याद होगा, वो एक नया लेके आए, उसने भी चेंजेस देखें आप, चेंजेस स्ट्रक्चरल थोड़े बहुत आगे पीछे कॉस्मेटिक कर सकते हैं, मगर असल में जो रियल चेंज है वो थ्रू डेमोक्रेटिक मींस ही आ सकता है, और लास्टिंग भी तभी होगा जब डेमोक्रेटिक मींस के थ्रू आएगा। इसलिए उनके पुलिस रिफॉर्म या लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म आज तक किसी चीज ने सर्वाइव नहीं किया, बिकॉज उसकी इंटेंशन कुछ और थी। उसकी इंटेंशन थी टू अंडरमाइन पॉलिटिकल पार्टीज, टू अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एंड more importantly to create a class that is loyal to Musharraf and for him to remain in power. बिल्कुल, वो अयूब खान वाला मॉडल था ना, बेसिक डेमोक्रेसीज वाला, कि जैसे वो सदर को इलेक्ट करते थे तो उनका ये ख्याल था कि ये सारे जो नाज़मीन और यूनियन काउंसिल्स के की सतह के ऊपर जो लोग अब इलेक्ट होंगे वो इनकी जनरल मुशर्रफ की कंस्टिट्यूंसी बन जाएंगे। लेकिन वही हुआ। मैं यहाँ कहूँ, सॉरी, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ कि ये मैंने क्योंकि खुद ग्रास रूट्स पे एक्सपीरियंस किया है, तो ये जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है ना, ये एन लोगों की जरूरत के मुताबिक तो है, और लोग चाहते हैं कि दुनिया में आप देखिए हर जगह जो सर्विसेज होती हैं वो लोकल अथॉरिटी ही प्रोवाइड करती है, लोकल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, और ये लोगों को चाहिए होती हैं, और बिल्कुल ग्रास रूट्स की बुनियादी सतह पे ये केटर करना चाहिए। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने वो भी किया, ये लोकल बॉडीज का भी किया, और साथ साथ पार्लियामान की भी जरूरत पड़ी। तो फिर जब पार्लियामान की जरूरत पड़ी तो उन्होंने तो कहा कि ये कैसे हो सकता है। एमएनएज और एमपीएज ने कहा कि डेवलपमेंट फंड्स हमारे हाथ से निकल जाएं तो फिर हमें सियासत करने का क्या फायदा, बिकॉज बाय दिस टाइम यू हैव क्रिएटेड नाउ दिस मॉन्स्टर, जहां पर सियासत सिर्फ एक बिजनेस का तरीका बन गया है, बिजनेस का एक वसीला बन गया है। जिस तरह हम लोग मीडिया में काम करते हैं, या हम फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, या हम जमीन के मालिक होते हैं, या हम जो भी कारोबार आप करें, सियासत अनफॉर्चुनेटली एक कारोबार बन गया ज़ियाउल हक की दिहाई के बाद, और 90 की दिहाई में और मुशर्रफ की दिहाई में ये सब नजर आ रहा था। इट वाज देयर एविडेंट, आज भी यही है अनफॉर्चुनेटली। और ये लोकल बॉडीज का सिस्टम जो है, ये पार्लियामान में जो के जरिए जो आता है वो उसको पनपने ही नहीं देता, बिकॉज फिर डेवलपमेंट फंड्स जो है वो लोकल बॉडीज को चली जाएंगे, तो एमएनएस और एमपीएस क्या करेंगे? व्हाई शुड दे कम इनटू पार्लियामेंट? लेजिस्लेशन के साथ तो उनको कोई ताल्लुक ही नहीं है, कानून साजी का तो वो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं कानून साजी में, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट फंड के लिए आते हैं एमएनएस और एमपीएस इलेक्ट होके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अहम आपने ये बात कही कि डेवलपमेंट फंड्स का, और ये जो हुआ, और याकूब भी ये बात कहे थे कि जो जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की इस्लाहात की, वो सियासी अमल के थ्रू, जमहूरी अमल के थ्रू नहीं हुई, और इसलिए वो देरपा साबित नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर वही थीम आ जाती है जो पिछले हम कई एपिसोड्स में बात कर चुके हैं, और वो ये हुआ कि 9/11 हो गया 2001 में, और पहले जनरल मुशर्रफ बिल्कुल एक पराया थे, जिनको के वेस्ट ने बिल क्लिंटन पाकिस्तान में एक रोजा दौरे के लिए आए, उन्होंने तस्वीर तक नहीं खिंचवाई थी। मुझे याद है 19 जब मुशर्रफ के कू के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम कू को सपोर्ट नहीं करेंगे या मिलिट्री रिजीम को नहीं करेंगे। लेकिन फिर 9/11 हुआ तो उसी फौजी हुकूमत को, उसी फौजी डिक्टेटर को आंखों का तारा बना लिया वेस्ट ने और यूएस ने, और पैसों की भरमार होना शुरू हो गई, और फिर जारी बात है कि उससे उसका फर्क भी पड़ा इकोनॉमी पे। ग्रोथ रेट्स जो हैं पाकिस्तान में 5 to 6% से ऊपर चले गए। बैंकिंग सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, ये सारा कंज्यूमर सेक्टर जो आजकल हम स्मॉग से मर रहे हैं,
all over northern Pakistan. یہ اسی زمانے کی لیسٹ گاڑیاں اور یہ اور وہ وہیکولر ٹریفک وغیرہ جو کہ کسی پلاننگ کے بغیر نہیں. اینڈ دس اکنامک گروتھ جو یہ ہوئی اس کی جڑیں کوئی نہیں تھی رضا, اس کی جڑیں کوئی نہیں تھی. دس واز آل قرضے کا پیسہ, borrowed money, اور کچھ نہیں تھا. اصل میں یہاں وہ رضا میں ایک اور بات بھی بیان کرنا چاہوں which will connect this to the previous phase کہ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان is a very مطلب sadly it has become a heavily foreign dependent country from its beginning. اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تب کوئی نہ کوئی انٹرنیشنلی اس طرح کے حالات بنے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ وہاں سے فنڈنگ آئی ہے. سو ایوب خان کے زمانے میں وی ملٹ دا ایسٹ اینڈ وہ سوویت یونین والی اور ویسٹ کا جو سارا تھا, اور ہماری ساری جو ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہے وہ ویسٹ سے آ رہی تھی اس دھمکی پہ کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیے, اگر آپ نے ہماری آرمی کو اکوپ نہیں کیا تو ہم سوویت یونین کی طرف چلے جائیں گے. 1980s میں ضیاء الحق صاحب بھی جو کہ پرایا تھے آفٹر دا کو جو انہوں نے کیا, اس کے بعد جیسے افغان وار شروع ہوئی تو وہ بھی پازیٹیو سائڈ پہ چلے گئے اور ان کو بھی بہت شاور کیے ان کے اوپر پیسے, اور بلینز آف ڈالرز پاکستان میں آئے. سیم وار آن ٹیرر جب شروع ہوئی, افغانستان پہ حملہ ہوا, پاکستان کی ضرورت پڑی, تو تب اگین مشرف صاحب کے زمانے کے اندر بہت زیادہ پیسے آنے شروع ہو گئے. اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ڈکٹیٹرشپس ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی. کوئی انٹرنل فیکٹر وہ جس طرح سے کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتا. بالکل, یہاں کوئی انڈسٹری لگی یا یہاں کوئی چیز ہوئی, ہم کنزیومرزم کی طرف چلے گئے بیکاز مفت کا پیسہ آ رہا تھا. اور یہاں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ ایکسٹرنل صرف مطلب یہاں کی کوئی اکنامک ہم نے ڈیولپمنٹ, یہاں کوئی بڑی انڈسٹری نہیں لگائی, یا ہم کوئی ایکسپورٹ کے اندر کسی چیز کے اندر بہت آگے چلے گئے ہوں. دوسری چیز ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں, الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں, تو تب ایسے حالات ہوئے ہیں کہ باہر سے پیسہ نہیں آتا تھا. 1971 کے بعد پیسہ نہیں آیا موسٹ آف دا ڈیکیڈ, اور جو میں نے پہلے بات کی کہ 1988 میں جب افغانستان میں پیس ایکارڈ ہو گیا, 89 میں فوجیں وغیرہ واپس چلی گئیں, اس کے بعد جو امریکہ پاکستان کو ایڈ دیتا تھا افغان وار کے لیے وہ بند ہوگی. اس کے بعد جو امریکہ سرٹیفکیشن کے تھرو ایڈ دیتا تھا کہ جی پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے, وہ سرٹیفکیٹ امریکہ نے پاکستان کو دینا بند کر دیا, آ گئی, اور اس کے پاکستان کو ایڈ نہیں ملی. تو 10 سال جو باہر سے جو ہمیں سپورٹ آتی تھی وہ نہیں ملی. تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ فگرز کو کمپیئر کرتے ہیں, یہ لوکل ڈیولپمنٹ فگرز ڈیولپ نہیں ہو رہے, یہ ایکسٹرنلی ایڈڈ ڈیولپمنٹ ہے جو آئی ہے ڈیورنگ ڈکٹیٹرشپس ڈیو ٹو ایکسٹرنل وارز. اور یہ سمجھنا جی بالکل, یہ ایکسٹرنل وارز اور یہ تھیم چل رہی ہے. ایوب خان, جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف, یہ بھی ایک کنٹینیوٹی ہے, اور چہرے بدل جاتے ہیں, پروسیس وہی رہتا ہے. تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جو اب ہمارا یوکرینین وار ایفرٹ کے اندر جو ہم لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے اسی کی وجہ سے ہمیں IMF کا ٹرانچ بھی ملا. تو یہ تو ہاں وہ بالکل جی بالکل. تو یہ جناب 2002 میں جنرل مشرف صاحب نے پھر کہا کہ میں سیاست میں اپنی آپ کو پریزیڈنٹ بنانے کی, پہلے تو انہوں نے اپنے کو چیف ایگزیکٹو کا ٹائٹل دیا ہوا تھا, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا نام بدل کے انہوں نے CEO بن گئے وہ پاکستان کے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کروائے جو کہ کنٹرولڈ الیکشنز تھے پہلے کی طرح, اور اپنا ہینڈ پک وزیر اعظم انہوں نے مقرر کیا. خیر وہ زیادہ دیر نہیں چلے, جمالی صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا, ان کو بھی نکال دیا, اور پھر وہ ان کو جو ہے شوکت عزیز ان کے فائنانس منسٹر تھے, ان کو انہوں نے PM بنا دیا. اور یہ ایک جسے کہنا چاہیے ایک ویک قسم کی ربڑ اسٹیمپ قسم کی پارلیمنٹ جو ہے 2002 سے 2007 تک وہ عمل میں رہی. لیکن یہ 2007 میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. اس سے پہلے ان کا جو ہے تھوڑا سا ٹینشن سٹارٹ ہو گئی تھی اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ, افتخار محمد چودھری کے ساتھ, اور وہ لیکن 2007 میں مارچ میں انہوں نے ان کو فارغ کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے ہم یہاں جسٹس اور لائرز موومنٹ پہ آئیں, میں ایک چیز ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز اگین جو ہمیں سارے وہ ڈکٹیٹرز میں ایک لڑی ایک اور بھی دکھائی دیتی ہے جو ایمفسائز کرنا بڑا ضروری ہے, کہ شروع میں ہر ڈکٹیٹر نے اپوز کیا ہے اینی اگریمنٹ وتھ انڈیا. ایوب خان نے بھی کیا, ضیاء الحق نے بھی کیا, اور مشرف نے بھی.
by the end of it all three of them realized कि पाकिस्तान की peace और prosperity दोनों तब तक नहीं हो सकती जब तक इंडिया के साथ पीस नहीं होगा. अगर आप देखें अयूब खान का, उन्होंने कॉन्वर्सेशंस की विद शेख अब्दुल्ला, वो तो कहते हैं जी अग्रीमेंट तकरीबन हो गया था, इफ नेहरू हैड नॉट डाइड तो मे बी द अग्रीमेंट वुड हैव बीन डन ऑन कश्मीर. सेम ज़ियाउल हक also reached out to India, और क्रिकेट डिप्लोमेसी जो बड़ी फेमस थी तब वहां शुरू हुई. एंड इन द सेम वे मुशर्रफ के जमाने में आगरा समिट हुई और सारा पीस इनिशिएटिव, ये वही मुशर्रफ था कि जिसने लीड की फौज इंडिया के खिलाफ कारगिल में. मगर जब वो प्रेसिडेंट बना, जब उसके हाथ में पावर आई, तो उसको समझ आई कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आनी है, तो पीस विद इंडिया इज एसेंशियल एट एनी कॉस्ट फॉर द गुड ऑफ इट्स ओन पीपल. और ये बड़ा जरूरी है अंडरलाइन करना है, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं नहीं जी इसके बगैर हम चल लेंगे. 3 मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, तीनों को ये क्लियर था कि जब तक ये मसाइल हमारे नेबर के साथ सॉल्व नहीं होंगे तब तक ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. और मुशर्रफ साहब के जमाने में तो ये ट्विस्ट इतनी जल्दी आता है कि बड़ा हैरानकुन ट्विस्ट आता है कि फ्रॉम अ पर्सन दैट लेड अ वॉर और क्लैंडस्टाइन वॉर टू अ पर्सन हु नियरली अचीव्ड पीस. वो और इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम मेरे ख्याल में बात कर सकते हैं लॉयर्स मूवमेंट की, कि अगर वो ये चीफ जस्टिस के साथ पंगा ना लेते तो शायद इंडिया के साथ हमारे मसाइल सॉल्व हो जाते और शायद हम एक और प्रॉस्पेरिटी की साइड पे चल पड़ते. शायद यहाँ पर हमें ये भी कहना चाहिए याकूब कि वो लॉयर्स मूवमेंट, वो इफ्तिखार चौधरी वाला जो एपिसोड सारा रहा, मुशर्रफ साहब का जो आउस्टर फिर मनूवर हुआ, और जो उसके बाद मैं समझती हूँ कि ये शायद जो जिस बात के ऊपर आपने इशारा किया कि ये पीस मूवमेंट इतनी जल्दी मुशर्रफ साहब ने इतनी आगे जाके आउट ऑफ द बॉक्स जो सॉल्यूशंस तलाश की फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस विद इंडिया, और इसकी बहुत इम्कानात बढ़ गए, तो क्या शायद उनको डिरेल करने की भी यही वजह थी? ये जवाब आप दें रजा. देखिए, मैं तो इसके ऊपर एक किताब लिखी है और उसमें ये इसका जो एविडेंस है वो आपको सर्कमस्टांशियल ही मिलता है, इनडायरेक्टली मिलता है, लेकिन ये जरूर मिलता है कि गालिबन जो उनका अपना इदारा था जुगनू साहिबा, वो इदारा जो है उसने जनरल मुशर्रफ और उनके आइडिया को अबैंडन कर दिया. 2-3 चीजें थी. एक तो जनरल मुशर्रफ बिल्कुल प्रो वेस्ट उनका था, इंतहा पसंदी के खिलाफ कुछ आई एम श्योर जाती भी और कुछ वेस्ट के इन्फ्लुएंस में भी उनका था कि फाइनली जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही हुई थी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ काम करने की, कुछ वो उस पर नजरसानी कर रहे थे या जो भी कहते हैं. लेकिन सबसे अहम चीज जो आपने जिसका इशारा किया है वो था इंडिया के साथ मनमोहन सिंह ने भी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी, उसमें उनके सेक्रेटरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि वो मनमोहन सिंह ने उस ड्राफ्ट के ऊपर खुद चेंजेस करके ग्रीन पेन के ऊपर से अमेंडमेंट्स की थी कि उसको फाइनलाइज किया जाए. यानी कि मामला इस हद तक आगे बढ़ा हुआ था. और ये बात है समर्स ऑफ 2007 की. लेकिन वो वक्त था कि अरूज पर चली गई लॉयर्स मूवमेंट और इंडिया ने कहा कि ये तो निकल रहा है बंदा, ये तो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करेगा. और फिर बाद में हमने देखा कि उनके अपने जो एसोसिएट थे जनरल कियानी, उस वक्त के डीजी ISI थे, बाद में वो आर्मी के चीफ भी बने, वो उन्होंने भी उनके ऊपर से उनकी बैक से हाथ हटा लिया. असल बात तो ये हुई कि इदारे ने जनरल मुशर्रफ को अबैंडन किया और कुछ पब्लिक प्रेशर भी था, बहुत ज्यादा था, बल्कि सियासी पार्टियों का भी, सिविल सोसाइटी का भी, मीडिया का भी. लेकिन अब जितनी टेस्टिमनीज आ रही है उसमें ये भी पता लग रहा है कि वो जो अनप्रेसिडेंटेड मीडिया कवरेज होती थी लॉयर्स मूवमेंट की, वो भी किसी इशारे के बगैर नहीं होती थी, क्योंकि जरूरत नहीं है ना किसी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को कि वो जाके तो आर्मी चीफ को के खिलाफ रोजाना गाली गलौज जो है वो उसको डायरेक्टली लाइव टेलीकास्ट करे. इतना भी अभी पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आया, ना आया था, ना आया है. आप भी देखें ना क्या हो रहा है, टोटल गैगिंग है पहले की तरह. तो बहरहाल ये वाली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और वो एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन बना उसका निकलने का, मुशर्रफ का. और मैंने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि वेस्ट ने भी देखा कि ये तो अगर उसकी अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो साथ नहीं है, तो पहले अमेरिका की बड़ी सपोर्ट हो रही थी मुशर्रफ को एज वी नो, और वेस्टर्न पावर्स की. उन्होंने देखा कि जब अपना इदारा ही जो है वो पीछे नहीं खड़ा हुआ इस चीफ के और पीछे से हट रहा है और सियासी एक
टेंशन भी स्ट्रीट्स के ऊपर है, तो आप पीछे हो जाओ और लेट्स वर्क विद द न्यू हॉर्स, i.e. जनरल कियानी जी। Quite right, quite right. ये हुआ, लेकिन जरा इसकी लेगेसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि याकूब आपने जैसे ब्राइट स्पॉट्स की बात कही थी, क्या कोई ब्राइट स्पॉट्स है इस पूरे मुशर्रफ का डेकेड है, 9 साल थे वो पावर में, 1999 से 2008 अगस्त तक वो प्रेसिडेंट रहे और चीफ एग्जीक्यूटिव और जो भी मुख्तलिफ अदवार में। अब वो कहते हैं कि जिन्होंने उन्होंने हदूद ऑर्डिनेंस के ऊपर थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई उस जमाने में, जो कि जनरल ज़िया-उल-हक का कानून, तो ब्लास्फेमी लॉ को अमेंड करना चाह रहे थे, अनाउंसमेंट करके भाग गए। हाँ जी, वो तो बिल्कुल उसी वक्त उनकी अपनी कैबिनेट ने छोड़ दिया। ब्राइट स्पॉट्स तो देखिए ना, दोनों पीरियड्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं फ्रॉम 1988 टू 99 और फिर 99 से तकरीबन 2008 तक काफी ज्यादा रहे हैं। दो चीजें मैं यहाँ जरूर बयान करना चाहूंगा जो कि पिछले और इस पीरियड कनेक्ट कर रहे हैं। एक जो अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीबी आल्सो रियलाइज्ड द मिस्टेक्स दैट हर फादर हैड मेड इन नेशनलाइजेशन। सो जो डीनेशनलाइजेशन का प्रोसेस है वो बेनजीर के फर्स्ट टेन्योर में शुरू हुआ। प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा बहुत प्रोसेस वहां शुरू हुआ जो कि फिर मियां साहब आगे लेके गए और वो फिर आगे चलता रहा ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम। सो ये जो है कि प्राइवेट एंटरप्राइज को जरा फोकस करना है, स्टेट ओन्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो कम करनी है, ये एक कोशिश एटलीस्ट वो चलती रही और आज तक वो चल रही है। एक और चीज मैं जरूर यहाँ मेंशन करना चाहूंगा बिकॉज मेरे ख्याल में उसका एक बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट था और हम उसको बड़ा कम अप्रिशिएट करते हैं कि बेनजीर के दौर में एक बहुत मेजर प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था लेडी हेल्थ वर्कर का जी। वो भी एक बहुत ज्यादा था। The first time ना सिर्फ रूरल एरियाज में पहले डिस्पेंसरीज वगैरह तो गवर्नमेंट ने बना दी थी, मगर अब एक औरत जाके घरों के अंदर औरतों को फैमिली प्लानिंग की, बेसिक हेल्थ केयर की टिप्स देती थी और उनकी मदद करती थी। तो काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीजें हुई 1990s के अंदर भी। और मुशर्रफ के जमाने के अंदर देखे ना, पहले एक चैनल पीटीवी हुआ करता था जो कि रात को 11:30 बजे वहां कौमी तराना सुनाया जाता था, फिर एक और प्राइवेट चैनल छोटा सा शुरू हुआ, मगर 99 तक कोई खास मीडिया क्या कहते हैं ओपन अप नहीं हुई। मुशर्रफ साहब ने जो ओपननेस दी कि अब इतने टीवी चैनल बन गए हैं, न्यूज चैनल बन गए हैं, बाकी चैनल्स बन गए, एंटरटेनमेंट चैनल्स बन गए, ये सारा मुशर्रफ के जमाने में हुआ है। तो जो मीडिया रेवोल्यूशन प्रैक्टिकली आया है पाकिस्तान में, उसके साथ मसाइल भी बड़े आए हैं, मगर एटलीस्ट मुशर्रफ साहब के जमाने में वो एक चीज होना शुरू हुई है। तो ब्राइट चीजें मैं एक और बात ऐड कर दूं, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट्स मैं समझती हूँ जो सबसे खुशाइंद चीजों में थी, वो ये थी कि बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम बनी, पहली वजीर आजम एक इस्लामी मुल्क की खातून, वो उनका वो बनना ही खवातीन के लिए इतना अहम था कि उसके बाद बहुत सी खवातीन फिर सियासत में आई। तो ये भी एक नया रुझान शुरू हुआ है पाकिस्तान में जो आज तक चलता आ रहा है। लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहूंगी रजा कि आप अगर प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहें मुशर्रफ साहब के दौर के इख्तिताम पे, तो ये जरूर हमें ये आपस में तो ये हमें कंक्लूड करना चाहिए कि बेशक जैसे याकूब ने कहा अच्छी चीजें हुई, उसमें तरक्की की तरफ पाकिस्तान का रुझान भी हुआ, उसमें लोगों को उम्मीद भी दोबारा से लोगों की उम्मीद भी बनी, लेकिन जब तक बुनियादी हकाइक पाकिस्तान के नहीं बदलेंगे, इन सब उम्मीदों पे पानी फिरता ही चला जाएगा और कोई चीज देर पा नहीं हो सकती जब तक आपका स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो किसी बुनियादी तौर पे बदलता नहीं है और उसकी हम आहंगी आपकी जो एक नई जरूरियात हैं उनके साथ नहीं हम आहंगी नहीं होती तो कुछ नहीं बदल सकेगा। बिल्कुल, ये बुनियादी बात है। आपने बड़ी अच्छी बात की। अब यही मतलब अगर हम इसको लॉयर्स मूवमेंट से कनेक्ट करें कि जो शुरू में लॉयर्स मूवमेंट की बात चली थी और वो था कि जी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बाय द एंड ऑफ इट सेंटर्ड अराउंड वन पर्सन। तो इसलिए जो लास्ट रेस्टोरेशन नहीं चली। जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आ गए, वो रिस्टोर हो गए, तो उसके बाद मतलब इट फिजल्ड आउट प्रैक्टिकली, क्योंकि नहीं तो चौधरी साहब भी तो पागल हो गए ना, वही ना। सो वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक बंदे के गिर्द घूमना शुरू होगी। पाकिस्तान का मसला ही ये है कि जब तक हमारी स्ट्रगल लॉयर्स मूवमेंट या कोई भी जो मूवमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, तब तक
प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज, तब तक प्रॉपर चेंज पाकिस्तान में नहीं आने वाला जब तक हम एक बंदे, एक शख्सियत से इसको हिलाएंगे नहीं। आज भी हम शख्सियात के ऊपर फंसे हुए हैं। हम जो कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंट्री में डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उसकी बात कम करते हैं, शख्सियात की ज्यादा करते हैं। और जब उस शख्स को वो राइट मिल जाता है, फिर हम बात भूल जाते हैं और फिर वो बंदा पागल हो जाता है। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में देखें, ऐसा ही हुआ है, हर वक्त हुआ है। तो ये बड़ा जरूरी है कि मुल्क मुस्तहकम तभी होता है, मुल्क तरक्की तब भी करता है, लॉन्ग लास्टिंग तरक्की तभी करता है कि जब प्रिंसिपल्स पे बेस्ड एक कंट्री आगे बढ़े, उसमें शख्स आते हैं जाते हैं, मुल्क कायम व दायम रहे। अगर आपने इसको लोगों के ऊपर इन्हसार सिर्फ रखा कि जी ये बंदा है, अब वो यही था ना कि वो इफ्तिखार चौधरी के गिर्द इतनी कहानी बन गई थी कि लोगों ने कहा बस ये वापस आ गए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं हुआ। वही जो जुगनू कह रही थी कि होप्स हाई होती हैं फिर डैश होती हैं, वो डैश इसी वजह से स्टेट स्ट्रक्चर नहीं बदलता, क्योंकि रियासत का जो किरदार है, जो रियासत का मेकअप है, वो नहीं बदलता। ये यहाँ पर देखे ना, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो वहां पर रियासत उल्टी, रियासत बदली, किसी और के हाथ में पावर गया, पावर शिफ्टेड, नई रियासत बनी, जब तब ही जाके वहां पर तरक्की का सफर शुरू हुआ। तो ये हम क्या बातें करते रहते हैं, हम वी गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, नथिंग इज गोइंग टू चेंज until the reality of Pakistan's reality, the ground reality changes. I'm sorry, until power shifts to the people of this country. It has to. बिल्कुल जी, उसके बगैर तो ये उसके बगैर हमारे क्राइसिस हल ही नहीं होंगे। आज भी यही मसला है, वही हर दिहाई में हम देखते हैं कि वहीं पे आके सुई अटक जाती है जहां से स्टार्ट हुई थी, और यही प्रॉब्लम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कंक्लूजन आज के अपने शो का करें। आपके फाइनल कमेंट्स मेरे ख्याल से इस पे आने चाहिए कि आपने ये नतीजा तो बिल्कुल सही निकाला है कि जब तक अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होगा और हकीकी तौर पे ये सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का जो गलबा है पाकिस्तान की रियासत और अवाम के ऊपर, वो नहीं क्रैक होगा या पीछे नहीं होगा, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, मैं चाहूंगा याकूब ये भी आप बताइए कि आज के हवाले से भी, और जो हमने 20 साल की हिस्ट्री को हमने अभी 1 घंटे में कवर किया है, नाज़रीन को भी बताएं 1988 से तकरीबन 2008 तक, लिटरली 20 साल। तो इन 20 साल में हम देख रहे हैं कि रिपीटेटिव साइकिल्स हैं, उससे पहले भी हैं, लेकिन याकूब कोई तब्दीलियां भी आई हैं कि जो कि आगे बदल सकती हैं पाकिस्तान के गोइंग फॉरवर्ड मुस्तकबिल को। देखिए, हम तो पाकिस्तान में हैं और हमारी तो उम्मीद है कि तकदीर बदलेगी, क्योंकि हम इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क बेहतर होगा। बट आई थिंक जो आज हमने 20 साल डिस्कस किए हैं, वो जिस तरह जुगनू कहती है ना, हम इसी सर्कल में घूम रहे हैं, तो हर दफा बूम और बस्ट हमारा होता रहता है। होप बढ़ती है, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। वो क्यों आ रहे हैं? वो जब तक ये डीप स्ट्रक्चर प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होंगे। तो एक जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू जो नया मुतालिया पाकिस्तान जो रजा आपने शुरू किया है, इसके जरिए हम यही लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसके डीप स्ट्रक्चरल रीजंस की तरफ जाएं, कॉस्मेटिक वजूहात की तरफ ना जाएं, जो कि 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल की हैं। पाकिस्तान की जिस तरह पाकिस्तान की अभी हालत है, ये 75 साल का जो मलबा है, इसको ठीक करना पड़ेगा कि मुल्क आगे बढ़े। और जब तक एक साइजेबल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ये रियलिटी नहीं समझती, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी तो यही मेहनत है, जब हम पढ़ाते भी हैं या जिस तरह जुगनू लिखती भी हैं, बात भी हम सारे करते हैं, कि ये लोगों को समझ में आ जाए कि जो आज हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, जो पहले हुआ था वो भी कोई नई बात नहीं थी। ये शुरू से ये सर्कल आता जा रहा है, और जैसे जैसे लोगों में ये शऊर पैदा होता जाएगा, उनमें ये अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी, तो पीपल विल स्लोली, वो कहते हैं ना, चिप अवे, आहिस्ता आहिस्ता वहां से पावर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और हो सकती है, और बहुत सारे मुबालिक में ऐसा हुआ भी है। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि जिस तरह लोगों में शऊर बढ़ेगा और डिसइंफॉर्मेशन जरा थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कंट्रोल्ड होगी, लोग जरा लॉन्ग व्यू में चीज को देखना शुरू करेंगे। सबसे अहम होता है कि आप इमीडिएट चीज को एनालाइज ना करें, इसको लॉन्ग व्यू में देखें कि तारीख के जाविये के अंदर ये किस तरह से चीज बैठती है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और इसके साथ साथ हमें रियलाइजेशन होगी कि ये जो सर्कल्स में हम घूमते जा रहे हैं, तरक्की नहीं कर सक रहे। देखें, इसका एक मेजर ताल्लुक हमारी आइडेंटिटी से भी है। हमने अगेन घट्टे का प्रोग्राम करना था, ये बात नहीं की कि राइज ऑफ एथनिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं सिंध में, वो 1980s में शुरू हुई थ्रू द MQM वर्सेस द पीपल्स पार्टी। फिर मिलिट्री ऑपरेशन होना शुरू हुआ। कराची के अंदर जो एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस था,
وہ پریکٹیکلی تباہ ہوا. پھر افغان ریفیوجیز آگے, پھر وہ ایک مسائل شروع ہو گئے. تو ہمارے یہ جو سارے جو ملٹیپل مسائل ہیں اس کی جو روٹ کازز ہیں, جب تک ان کو ایڈریس نہیں کریں گے باقیوں کو بھی ایڈریس کرنا بہت مشکل ہوگا, اور باقیوں کے جو بھی ہم سولوشنز لے کے آئیں گے وہ پیس میلی ہوں گے اور وہ مومنٹری ہوں گے, وہ کبھی لاسٹنگ نہیں ہوں گے. بالکل پیس میل ہوں گے. جی جگنو, آپ کا بھی فائنل کامنٹ. میرے آخری کلمات یہ ہیں, آپ سب نے صحیح کہا, ہم نے انالیسس بھی اپنی طرف سے کیا. دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا وہ ریاست کے ادارے جو اس وقت طاقت کو یرغمال کیے بیٹھے ہیں, کیا وہ خود اس چیز کو سمجھ کے اپنی طاقت کو عوام کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنا لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ میں اس چیز کو سمجھ لیں گے, یا کہ بدقسمتی سے اکھاڑ پچھاڑ کے نتیجے میں یہ جو طاقت سلب کی ہوئی ہے اسی اشرافیہ نے, یا ایلیٹ کیپچر جسے کہتے ہیں, کیا وہ اکھاڑ پچھاڑ کے نتیجے میں ان سے عوام لیں گے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اسی پہ میری بات کا اختتام ہونا چاہیے. بالکل بالکل, آپ نے یہ صحیح بات ہے. اور وہ لوگ اسی وقت موبیلائز ہوں گے جب ان کو شعور ہوگا, انفارمڈ ہوں گے وہ تاریخ سے بھی اور آج کے حالات سے بھی, اور تبھی وہ مستقبل کی راہ تلاش کر سکیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی دوبارہ, اور بھی سیریز ہم لے کر آئیں گے. اور تھینک یو جگنو صاحبہ, اینڈ تھینک یو یعقوب بخش فار جوائننگ اس. خدا حافظ.